Hello everyone. I hope you are very fine at home and you are learning well also. Now the chapter number 1, life processes, first part of the chapter, that is nutrition. We have come to the last topic, that is nutrition in humans. A very important topic from the point of view of examination. एग्ज़ाम में बहुत सारे डायग्राम्स हैं इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है, कीवर्ड्स हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डू वी ह्यूमंस हैव. कौन सा हमारा न्यूट्रिशन का मोड होता है? यस, इट इज़ होलोजोइक mode of nutrition, heterotrophic, and in heterotrophic the mode of nutrition is holozoic. Many times in the examination it is asked what type of nutrition is found in human beings. So if you write heterotrophic, that is correct, but you can also include the word holozoic because that is more appropriate. Now in holozoic nutrition we know that there is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So देयर इज़ एन इलेबोरेटिव सिस्टम इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में एक बहुत ही इलेबोरेटिव सिस्टम है न्यूट्रिशन के लिए, एंड दैट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं वो है, पहला है एलिमेंट्री कैनाल एंड द अदर पार्ट इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही है. माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ, फूड पाइप, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस. इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्क्राइब व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब from mouth to the anus. Anus means it is a part of the body from which the waste is expelled out. एंड अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 8 मीटर टू 9 मीटर. 8 से 9 मीटर के बीच में ये पूरा फूड पाइप माउथ से लेके एनस तक होता है. एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल? आई हैव रिटन AC in short for elementary canal. Now I have written here all the parts of elementary canal starting from mouth, and beside it I have also tried to draw a diagram. It is important diagram, you must also practice this. Mouth is the first part of alimentary canal, then it is esophagus. Esophagus can also be called as food pipe. Why food pipe? क्योंकि इसमें से food pass होता है और पाइप की तरह दिखता है. Then the third part of alimentary canal is the stomach. You can see stomach. After stomach, the next part of the alimentary canal is the small intestine. You can say this is a narrow tube. It is longer than the larger intestine but narrow होती है, लेकिन लंबाई में बड़ी होती है. After the small intestine we have large intestine, and then the last part of the एलिमेंट्री कैनाल इज़ एनस. एनस से ऊपर यहाँ पर एक पार्ट और आपको लेवल कर लेना चाहिए, विच इज़ नोन एज रेक्टम. दिस ऑल्सो यू मस्ट नो, राइट? सो यू कैन सी दैट आई हैव कलर्ड पिंक कलर फॉर द होल एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू द लास्ट पार्ट, दैट इज़ एनस, राइट? The second part of our digestive system are the digestive glands. Digestive glands, we have 3 glands, very important glands for our digestion. The first is salivary glands. They are found in the oral cavity. Oral cavity का मतलब है माउथ. जो माउथ के अंदर जो हॉलो माउथ है उसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं. आई एम राइटिंग हियर द स्पेलिंग, यू कैन सी बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी यानी कि माउथ, oral cavity. And then the second gland which is important for digestion is liver, and the third one is pancreas. So these 3 are the important glands which are there for digestion of our food. So before we start to learn in detail the digestion of food, there are some important points, or you can say important keywords that you must know. The first important definition is alimentary canal. What is alimentary canal? We have
just seen, we will define it as a long tube or a long hollow tube in our body starting from mouth to anus. ओके जो माउथ से लेके एनस तक की जो लंबी सी ट्यूब है जिसके अंदर हमारा फूड पास ऑन होता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल. सेकेंड इम्पॉर्टेंट कीवर्ड इज एंजाइम विच विल बी कमिंग अगेन एंड अगेन इन द डाइजेशन. What are enzymes? These are the biocatalysts that are required to carry out specific biochemical reaction. In digestion, many digestion processes are helped or they are speeded up by the help of some catalyst or because they are present in our living body. So we call them as biocatalyst, or in simple words they are known as enzymes. Next important term is glands. It is not a common, it is a common word, not a new word for you. Glands, they are of two types, endocrine glands and exocrine glands, that we will learn in detail. But right now you have to learn glands as the part or the organs of our body that secrete particular chemical substance. हमारी बॉडी में कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कुछ केमिकल्स सीक्रीट करते हैं और उनको हम कहते हैं ग्लैंड्स. हमारे डाइजेशन प्रोसेस में भी 3 ग्लैंड्स हैं जो कुछ केमिकल्स को सीक्रीट करते हैं और उससे हमारा डाइजेशन ईजी हो जाता है. I think you have understood. Okay, now we will discuss the alimentary canal in detail. Okay, what are the parts of alimentary canal? The first part of our alimentary canal is mouth. Mouth can be also called as the ingesting organ. Ingesting का क्या मतलब था? Ingestion मतलब taking in food. So हमारी बॉडी में जो फूड है वो कौन से ऑर्गन के थ्रू अंदर जाता है? माउथ. सो इट इज़ इंजेस्टिंग ऑर्गन. माउथ को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे माउथ में 3 चीज़ें होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं. द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टीथ. यस, दांत ना हो तो क्या होगा? खाना हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं कट पाएगा. तो टीथ का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड. जो भी हम फूड खाते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स का फूड खाते हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स होते हैं. ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं वो सॉलिड होता है. सो फर्स्ट इट इज़ ग्राउंड, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है और च्यू किया जाता है. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है वो प्रोसेस? इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ सॉलिड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. तो हु डज दिस वर्क? टीथ, राइट. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ इज़ टंग. ठीक है, डू यू नो दैट टंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग मसल जो है वो है टंग. ठीक है, टंग का क्या होता है इम्पॉर्टेंट काम? इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ ग्राउंड फूड विथ सलाइवा. हमारी बॉडी में जब हम मुंह में खाना डालते हैं, कुछ टेस्टी खाना हम देखते ही हैं, अभी मुंह में डाला भी नहीं होता है, तो हमारे मुंह में कुछ पानी जैसी चीज़ रिलीज़ होने लगती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं लार और इंग्लिश में कहते हैं सलाइवा. तो मुंह में पानी आ जाता है जब हम कहते हैं, तो वो पानी एक्चुअली सिर्फ पानी नहीं होता है, उसके अंदर सलाइवा होता है और उसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं. ठीक है, और जो हमने खाना चबा दिया है, जो च्यू कर दिया है, उसको हम कहते हैं ग्राउंड फूड. ग्राउंड फूड और सलाइवा को मिक्स करने का काम कौन करता है? टंग. और हमारे टंग में टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं जो हमें टेस्ट बताते हैं, स्वीट, सार, बिटर, है ना. अब हमारा जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है माउथ में वो होता है सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स, बिकॉज इट इज़ अ ग्लैंड, दे रिलीज सलाइवा. What is saliva? Saliva is a mixture of water and salivary amylase enzyme. Very important name, salivary amylase. It is the enzyme which is released by salivary glands and it helps in the digestion of starch which is present in the food into simple sugar. जो complex कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने का काम कौन करता है? वो करता है सलाइवरी अमाइलेज. तो हमारे फूड का डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. पार्शली हमारे माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले जो ग्लैंड रिलीज करता है एंजाइम वो है सलाइवरी अमाइलेज और ये डाइजेस्ट करता है किसको? स्टार्च को शुगर में.
Now we will see ahead.